Is it right testing God? तो आज का विषय ये है कि परमेश्वर की परीक्षा लेना क्या सही है? I want to use the word testing because I can't use the word tempt because maybe it may be too heavy. So is it right testing God? क्या परमेश्वर की परीक्षा लेना, उनका टेस्ट लेना सही है या नहीं? Like some people will say, "Oh God, if you answer my prayer, I will give you thanksgiving." जैसे कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर अगर आपने मेरी इच्छाओं को पूरा कर दिया तो हम आपको धन्यवाद देंगे। Or some people say, "Oh, before I don't believe in God, but something happened, because of that I start to believe in God." कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पहले मेरे जीवन में कुछ परेशानी थी, तब मैं परमेश्वर में विश्वास नहीं करता, लेकिन जब परमेश्वर ने परेशानी का हल निकाला तो मैं। So is it right for every Christian to always find reason to believe in God? क्या एक मसीह के लिए जरूरी है कि एक कारण होना चाहिए परमेश्वर में विश्वास का? So we have. Is it right testing God? Like some people will say, "Oh, if God will give me this job, or if God will do this in my life, then only then I will do this for God, or I will do another thing for God." लोग कहते हैं कि अगर परमेश्वर ने मेरी नौकरी लगवा दी, मेरा ये काम करवा दिया, तभी मैं परमेश्वर में विश्वास करूंगा। So, is it right for us to test God? क्या ये सही है हमारे लिए परमेश्वर की परीक्षा लेना? For instance, you always want something special, you need that, you start to ask God, you do this in my life, and only then, or before you don't believe in God, you don't even go to church, or you go to church but your faith is little, and you asking God, if you heal my daughter, God, if you heal my son that is sick, then I will go and I will do this. I will start to believe in you. I will start to do all these things. तो हो सकता है आप चर्च आते हो या ना आते हो, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मेरे घर में परेशानी है, मेरी बेटी बीमार है, अगर ये ठीक हो गई तो मैं चर्च आना शुरू कर दूंगा, मैं ये काम करने लग जाऊंगा। Is it right? Somebody say yes. Everybody say yes. No. Somebody say no, and somebody say yes. What I have to say today is that it is only God that has the right to put himself to a test. Amen. हमारे भाई ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ परमेश्वर ही है जो खुद अपने आप की परीक्षा ले सकता है, कोई परमेश्वर की परीक्षा नहीं ले सकता। It is only God himself has the right to put himself to a test. परमेश्वर के पास ही हक है अपने आप को परीक्षा में रखने का। Or can I say it is only God that has the right to tempt himself? सिर्फ परमेश्वर के पास ही अधिकार है अपने आप की परीक्षा लेने का। He proved it in Malachi chapter 3 verse 10. Let's go. जैसे उन्होंने मलाकी के 3 अध्याय के 10वें वचन में कहा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। Amen. God says that this is where God have given the right. He said, "Bring all the tithes into the storehouse,
there may be food in my house. And he says, try me now. God is saying, test me, try परमेश्वर me. कह रहे हैं मुझे खुद परखो. That is God himself who have the absolute power of testing himself. He have the power to appeal to us to try him. तो परमेश्वर ही है जिनके पास अधिकार है अपने आप को परीक्षा में रखने का. Some people say that why do God has the power to test himself and I don't have the power to test God? कई बार लोग पूछते हैं कि क्यों परमेश्वर में तो ये सामर्थ्य है कि अपने आप की परीक्षा ले रहे और हम परमेश्वर की परीक्षा रखने का सामर्थ्य नहीं रखते. Does somebody know that? किसी को पता है क्यों? God have said in Malachi, परमेश्वर ने कहा you है should try me, you should try. God said that. कि You मुझे should परखो. try. परमेश्वर ही कह रहा है मुझे परखो. Then why should I say, if God said you should try me, then why can't I try God? तो जब परमेश्वर खुद कह रहा है मुझे परखो तो हमारे भाई यहाँ पर क्यों कह रहे हैं कि हमें परमेश्वर को परखना नहीं चाहिए? And God says परमेश्वर ने कहा you should try me. कि मुझे परखो. Why did God say that? क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा? Because God knows very well that we are people with unbelief. Amen. हम वो लोग हैं जो अविश्वास पर जीते हैं. He knows that we are people with unbelief. You and I need assurance. You and I need promise that when I tell you I will do this, promise me. Promise me that you are going to do this. Assure me you are going to do this. That is why God is promising you. God is assuring you because He knows that you and I are people with unbelief. परमेश्वर को पता है कि आप और हम ऐसे लोग हैं जो अविश्वास पर जीते हैं. इसलिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें गारंटी चाहिए होती है. कोई हमसे कहता है You and I are people that our faith is shaking. हमारा विश्वास हिलता रहता है. कोई हमसे कहता है हम ये करेंगे, अच्छा वादा करो, पक्का करोगे? हम विश्वास ही नहीं करते हैं. Because if you know क्योंकि अगर आपको पता है that when you give, you're sure that you will get something. God don't need to assure you and I. कि परमेश्वर को पता है कि जब आप कुछ देते हो तो आपको वो गारंटी चाहिए कि अगर हम कुछ दे रहे हैं तो हमें उससे ज्यादा कहीं तक मिले. Because we compare God with this of our life. क्योंकि परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को हम रखते हैं. When I go to buy phone, we compare God like we are buying television, we are buying phone, we are buying watches, and we need the receipt, we need warranty. Warranty that 1 year, if it spoils, the company will take care, and the company will assure me that this is warranty. Or somebody will tell you, no, they didn't give you receipt. You go to buy medicine, oh, without the receipt, this is fake. Make sure you take receipt. That is the comparison that we compare God. That is why God looks at us and says, please, I am going to give you receipt. Just try and give your tithes, and I will repay you with good. जब भी अपने जीवन में कुछ खरीदने जाते हैं, दवाई लेने जाते हैं, कुछ भी टेलीफोन खरीदने जाते हैं, तो हमेशा हम क्या मांगते हैं? रिसिप्ट मांगते हैं कि भाई गारंटी दो, वारंटी दो, कोई परेशानी आ गई तो हम आएंगे. तो वही तुलना हम परमेश्वर के साथ करते हैं. जब हम परमेश्वर के भवन में कुछ दे रहे हैं, तो क्या परमेश्वर हमें भी उससे अधिक देगा या नहीं देगा? Why should you say, God, if you heal me, I am going to give you thanksgiving? For the fact that you doubt even that God is going to. What if? What do you mean by if? If you believe, if you have your faith, because God knows that we are people of unbelief, we are people of certainty. We are not even sure of the. You know, people are coming here, they're not even sure. They come here because Pastor Kamai sent the message to come here because maybe they want to come and see what is happening here. Or they don't know even why they are here. बहुत सारे लोगों को यहाँ पता नहीं है कि वो क्यों आए, क्योंकि सिर्फ पास्टर उनको फोन करा इसलिए वो आ गए हैं. हम यहाँ पर अविश्वास से आए हैं. अभी भी पूरा विश्वास नहीं है कि हम आए हैं तो परमेश्वर ये जरूर हमारे जीवन में करेंगे. Deuteronomy chapter 6 verse 16. Deuteronomy chapter 6 verse 16. Let's get something, no matter how time we take. I don't want to give you a lot, but one thing you get today, take it home. Amen. व्यवस्था विवरण 224 पेज नंबर पुराना नियम. Deuteronomy chapter 6 verse 16. 6 का 16. तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना जैसे कि तुमने मस्सा से उनकी परीक्षा की थी.
आमीन। You shall not tempt the Lord your इसका God. मतलब परमेश्वर की परीक्षा As मत you करना। tempted him last time. Amen. आमीन। Why should we tempt God? क्यों हमें परमेश्वर की परीक्षा लेनी चाहिए? Why should you tempt God? क्यों परमेश्वर की परीक्षा लेते हैं हम? Your faith is your certificate. आपका विश्वास ही वो प्रमाण पत्र है। You know, I know God is going to do it. मुझे पता है कि परमेश्वर जरूर करेंगे। You don't pray to God with if. हम जब भी प्रार्थना करते तो हम ये नहीं कहते कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। If you pray God with if, that means you don't know who God is. अगर आपकी प्रार्थना अगर से शुरू होती है तो इसका मतलब आपको पता ही नहीं कि परमेश्वर है कौन। You don't wait for when something happens in your life, you give thanksgiving. तो आप इंतजार नहीं करते रहते कि ये चीज मेरे जीवन में होगी तभी मैं भेंट चढ़ाऊं। Every day of your life is thanksgiving. हर एक दिन आपके जीवन का एक भेंट चढ़ाना है। Every day of your life is blessing. हर एक दिन आपके जीवन का आशीषित और धन्यवाद का दिन है। So whenever you pray with that belief that I know that my God exists, that I know that I don't need any proof. I don't need any pastor to give me any proof that the God that I'm serving is a living तो God. जब भी हम प्रार्थना करें तो हमारे अंदर वो अविश्वास नहीं होना चाहिए कि कोई कहेगा तभी मेरे जीवन में होगा, लेकिन पूरा विश्वास होना चाहिए। Peter say, you shall not tempt the Lord your God. क्योंकि व्यवस्था 6:16 में लिखा है कि परमेश्वर की परीक्षा ना करें, Because He knows what you need. क्योंकि उनको पता है कि आपकी जरूरतें क्या हैं। He knows what you're passing through. उन्हें पता है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। But what we fail to understand, लेकिन हम क्या नहीं समझ पाते हैं, God wants the best for us. परमेश्वर हमारे जीवन में सबसे उत्तम करता है। It's not like human beings. इंसानों की तरह नहीं है। If God is God, अगर परमेश्वर ही परमेश्वर है, do you know that the vaccines that are being produced right now, जो आजकल वैक्सीन बन रही हैं, लोग ले रहे हैं, human beings just package it because they have interest in the money. क्यों लोग दे रहे हैं वैक्सीन? क्योंकि उनको पैसा कमाना है। Because people they want, let's be the first so that we gather all the whole money in the world, all the billions that was contributed to the World Health Organization will be transferred to us. So people tend to pack, they don't check the quality, they don't check the life of the people, they are just interested in the benefit of that money they are going to बहुत सारी get. कंपनी जो वैक्सीन बना रही है वो चेक भी नहीं कर रही कि वैक्सीन कितना काम करेगी, पर वो बना रही है, आगे दे रही है, बस पैसा कमाना चाहती है, होड़ में लगे हैं सारे के सारे। Everybody will say, oh, let's go and take it, everything is fine for us, God has answered our और prayer. हर कोई कह रहा है कि चलो चलो जाके वैक्सीन पे लगवा ले, परमेश्वर तो बचा ही लेगा। But if God, look and see what is happening to the लेकिन vaccine. आप देखिए क्या हो रहा है वैक्सीन के साथ भी। Many have died just taking the vaccine. बहुत लोग वैक्सीन लगवाकर मर गए हैं। Many have developed some organ failures बहुत after सारे लोग taking the vaccine. वैक्सीन लगवाने के बाद उनके अंग काम करने बंद हो गए हैं। Even those who took the vaccine also are reinfected with the diseases. कितने लोग ऐसे भी हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी उन्हें कोरोना हो गया। So they are doing something with benefit. तो इसका मतलब वो दवाइयां दे रहे हैं लेकिन अपने फायदे के लिए दे रहे हैं। Do you know that if God were about to manufacture vaccine for us, अगर आपको पता है कि परमेश्वर ने भी हमारे लिए एक वैक्सीन बना सकते हैं, if God said no, my vaccine will take 3 days, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरी वैक्सीन को 3 साल लगेंगे, तो oh, we'll be complaining, oh, 3 years is too much. और हम कहेंगे अरे 3 साल तो बहुत ज्यादा लंबे हैं, Before 3 years, we are going to all die और and 3 साल perish. के पहले ही अगर हम सब मर गए तो क्या हो जाएगा? Why can't you do it now अरे in 2 months? परमेश्वर आप तो अभी बना सकते हो, जल्दी बना दो। That is what we struggle in ourselves. तो हमारे जीवन में हर एक चीज हम जल्दी और अभी ही चाहते हैं। When you pray, God, please do this for me. God, I have no money. God, this, my life is difficult. God, this, and it looks as if God is not. You know, things are getting worse in your life. तब अपने जीवन में कहते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में ये परेशानी से निकालो, और हमें लगता है कि परमेश्वर कुछ नहीं पता, सारी परेशानियां हम ही झेल रहे हैं। That's when we begin to doubt our faith. और तभी हम अपने विश्वास पर शक करने That लगते is when we unnecessarily test God. हैं और हम भी परमेश्वर की परीक्षा लेने लग जाते हैं। But if you are suffering in 2021, लेकिन अगर आप 2021 से परेशान हैं and God said, I'm going to bless him in 2022. और परमेश्वर कह रहे हैं मैं 2022 में तुम्हें आशीष दूंगा, You know, you don't know what God has in stock for you. आपको नहीं पता कि परमेश्वर के पास आपके लिए क्या है। But in 2021, you will curse God, you will lose your faith, you will not go to church, you will not even believe. You know, you will be at home and you will be looking at the ceiling and they say, let's go and pray. You say, leave.
I don't even be like, pray, I'm tired of praying. लेकिन परमेश्वर ने जब 2022 में आपके लिए आशीष रखे तो 2021 में परमेश्वर को श्राप देते रहेंगे, बुरा बोलते रहेंगे, शिकायतें करते रहेंगे कि इस पूरे साल तो मैं परेशान हूँ, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। My advice for those लेकिन उन लोगों के हमारे भाई क्या सलाह देना चाहते हैं who are looking for blessings from जो God, आशीष ढूंढ रहे हैं परमेश्वर से, that's what I ask. वही पूछा इन्होंने And आपसे। that is what I want God to do for me. और वही परमेश्वर से हम जो चाहते हैं कि हमारे जीवन में हो जाए। I used to pray and ask God, हमारे भाई प्रार्थना करते परमेश्वर से पूछते हैं, God, take time and bless me. परमेश्वर समय दे और मुझे आशीष दे। I said, God, do not bless me in a hurry. हमारे भाई कहते हैं परमेश्वर जल्दीबाजी में मुझे आशीष न देना, धीरे धीरे देना। That is my prayer. I tell you, that is my prayer. वो हमारे भाई की प्रार्थना I है। said, God, do not bless me in a hurry. वो कहते हैं परमेश्वर मुझे जल्दीबाजी में आशीष मत देना। God, don't make me rich for 10 years and the whole of my life I'm going to suffer. वो कहते हैं कि परमेश्वर मुझे 10 सालों के लिए अमीर मत बनाना और उसके बाद फिर मुझे गरीबी में डाल दोगे। Take your time and bless me. Make sure you bless me forever. लेकिन आप जब भी मुझे आशीष दें, कितना ही समय ले तो वो अनंत काल तक के लिए होना That चाहिए। my blessing will be transferred from generation to कि generation. मेरे आशीष इस पीढ़ी में नहीं लेकिन आने वाली पीढ़ियों तक भी जाए। Anything that is done fast, anything that is done fast does not last long. कोई भी चीज जो जल्दीबाजी में होती है वो कभी भी ज्यादा समय तक टिकी नहीं रहती। Everybody's in a hurry. हर कोई जल्दी में है। When you go to the metro, when you go on the road, everybody's in a hurry. अगर आप मेट्रो में जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, हर कोई भाग रहा है। When you are driving, you will be driving, another person will come and block you, another person will come and block. Everybody's in a hurry. और आप देखिए अगर आप रोड पे जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, कोई और आ रहा है, बीच में कोई और आ रहा है, हर कोई भागने में लगा हुआ है। No patience, nobody किसी में wants to कोई be धैर्य नहीं है, last. सब भाग रहे हैं। But my prayer, हमारे भाई की प्रार्थना, and I pray you change your prayer today. और वो चाहते हैं कि आप भी अपनी प्रार्थना को आज से बदल I दें। say, God, don't bless me in a hurry. परमेश्वर मेरी को जल्दीबाजी में आशीष मत देना। Take your time and give me the best. समय लो पूरा और फिर मुझे सबसे अच्छा दो। Take your time and build the best in my life. मेरे जीवन में सबसे अच्छा सही समय पे अपने समय पे दो। That people will see that blessing in me. तब लोग मेरे जीवन में वो आशीष को And देखेंगे your name will be glorified. और आपके नाम को महिमा मिलेगी। Yes, I'm not in a hurry. इस जल्दीबाजी में कुछ ना करें। Be cool, have patience in सब्र life. रखें, धैर्य रखें। You know, many people think that, they think that the world ends like the way they see it today. लोग सोचते हैं कि जैसे उनकी दुनिया आज चल रही है, आज ही दुनिया खत्म होने वाली है। Do you know how many people कितने सारे लोग that God is going to bless in the next 4 years? अगले 4 सालों में परमेश्वर उनके लिए बहुत बड़े आशीष रखे You know, हैं। a massive blessing. आप देखिए कितने बड़े आशीष। There are people that you don't know them now. जी। Like in politics, you never had their names. कि जिनके नाम आपने आज तक नहीं सुने, उन लोगों के In 4 years to come, you're going to see new people again. God will going to bless. आप देख सकते हैं कि अगले आने वाले 4 सालों में कि परमेश्वर उन्हें आशीष देके बड़ा करते हैं। Maybe Modi Amisha will be old name for you. You will see new people assuming office in the next 4 years. हो सकते हैं कि जो भी हमारे प्रधानमंत्री हैं वो चले जाएं और उनकी जगह पे कोई और बड़ा मंत्री आ जाए। So don't believe that I will be among the next people. There are badges, steps of people that God is blessing. Wait for your turn. तो विश्वास करें कि मैं भी उन लोगों में से एक हूँ जिन्हें परमेश्वर आगे आने वाले सालों में आशीष देने So वाले that हैं। God will take time and plan for ताकि you. परमेश्वर समय ले और आपके जीवन में कुछ अच्छी योजनाएं रखें। Anything that comes fast, I don't like it. जो भी चीजें जल्दी आती है हमारे भाई को पसंद नहीं है। From today, I want you to eat something that is not fast. कोई भी चीज जल्दी होती है, आज से उसकी नफरत करने लग जाए। Amen. Let's go to Matthew chapter 4, verse 3. मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय 3 पद। Matthew chapter 4, verse 3. Let me teach you something in life that will help you transform your faith and transform your belief in God. Amen. मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय 3 वचन, हिंदी बाइबल नया नियम 5। Matthew chapter 4, verse 3. तब परखने वालों ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। 3. Leave it there. Amen. The devil said that. जो शैतान है वही परीक्षा लेता है। You know, that is his word. He said to God, now when the tempter came to him, he said, if you are the Son of God, and if you are praying and you use this if, तो जैसे कि लिखा है कि परखने वाला मतलब जो शैतान था वो यीशु के पास आया और उसने कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, उसने क्या शब्द का इस्तेमाल किया? यदि। so when you press if,
तो जब आपकी प्रार्थना ही यदि से शुरू होती है, if God will bless me, अगर परमेश्वर ने मुझे if आशीष God दिया, will answer my यदि prayer, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को if उत्तर दिया, God will do this for me, यदि परमेश्वर ने ऐसा कर then दिया, I will be happy and I will तो do मैं this. खुश होऊंगा और मैं तब ऐसा काम करूंगा। But not today, लेकिन आज नहीं। that is what Satan uses. लेकिन आप जाने कि यही चीज शैतान भी इस्तेमाल करता है। He says to God, वो परमेश्वर से कहता है if you are the son of God, कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, if वो यदि का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? Satan knows that he is the son of God, शैतान को तो पता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। then why should you know that God is God? Then why should you know if you are God? तो फिर भी वो क्यों ऐसा बोल रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है? He knows he's God. उसे तो पता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है। So why can't he say you are God? तो क्यों नहीं कह सकता कि जो तू परमेश्वर है? That is the trick of Satan, to make sure that our faith do not know. We should believe, we should know that he is God. क्योंकि शैतान यही चाहता है कि हम विश्वास न करें कि परमेश्वर में सामर्थ्य है। Satan know if you are God. What if you are God? What? He is God. यदि का इस्तेमाल कर रहा है जबकि उसे पता है कि वही परमेश्वर का पुत्र है। So you don't tempt God. तो आप परमेश्वर की परीक्षा ना लें। When you tempt God, you tempt your faith. क्योंकि जब आप परमेश्वर की परीक्षा ले रहे हैं तो अपने विश्वास की आप खुद परीक्षा ले रहे हैं। When you doubt God, you doubt your faith. तो जब आप परमेश्वर की परीक्षा लेते हैं तो आप अपनी खुद Do शक not करते हैं। say if God will bless me. Say God will bless me. आप ये ना बोले कि परमेश्वर अगर मुझे आशीष देगा, आप बोले परमेश्वर मुझे आशीष देगा। Do not say if God will answer my prayer. God will answer my ये prayer. ना बोले कि अगर परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया, पर बोले कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। A Christian should command. तो आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए। You should take power of your faith because you know Him is your God. वो विश्वास का सामर्थ्य आपके अंदर होना चाहिए कि आपको पता है कि वही आपका परमेश्वर है। You shouldn't be weak. आपको कमजोर नहीं होना है। You shouldn't be doubting. आपको शक नहीं करना है। I don't know if this will happen. अरे पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। I don't know if my son will survive. अरे पता नहीं मेरा बेटा बचेगा कि नहीं बचेगा। My son will survive in the mighty name of Jesus. आप बोले कि मेरा बेटा बचेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। I will be blessed in the mighty name of Jesus. मैं यीशु मसीह के नाम से जरूर सामर्थ्य और आशीष को पाऊंगी। You should claim your authority. अपने जीवन पे आशीषों को बोले। That is your faith. वही आपका विश्वास है। That is your belief. वही आपका विश्वास है। Because you know He is God. क्योंकि आपको पता है कि वही परमेश्वर है। So don't joke with your faith. तो अपने विश्वास में मजाक ना करें। If I have accident, why should you have accident if you know God? अगर आप क्यों कहते हैं कि मैं बाहर जाऊंगा और मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आप बोले कि क्यों होगा जब मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूं। If we have accident, अगर एक्सीडेंट हो गया तो because you don't know your God. क्योंकि आप अपने परमेश्वर को नहीं जानते। I will reach you peace. आप बोले कि मैं शांति से ही उठ In the mighty name of यीशु Jesus. मसीह के सामर्थ्य भरे नाम में। Take your command. तो बोले Do not be treated like Satan. तो शैतान की तरह कार्य ना करें यदि का इस्तेमाल करके, Because he knows he's God. क्योंकि आप अपने परमेश्वर को जानते हैं। And he's asking if you are God. और फिर भी कह रहा है यहाँ पर यदि तू परमेश्वर है, That is what I hate. वही चीज बुरी है। Let's go to Matthew chapter 4 verse 7. मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय का 7वां वचन इसी पेज पे। Matthew chapter 4 verse 7. यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। आमेन। You shouldn't tempt God. आपको परमेश्वर की You परीक्षा should नहीं not करनी। tempt your Lord your God. अपने परमेश्वर को नहीं परखना है। You tempt somebody that you don't know. आप उसी की परीक्षा लेते हैं जिसको आप नहीं जानते हैं। If you know somebody, अगर आप किसी को जानते हैं, if I know you, अगर हमारे भाई पास्टर को जानते हैं, and I want you to go and buy for me, maybe let's say Coke. वो चाहते हैं कि आप इनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आएं, And I know that maybe one can or one bottle of Coke is sold at rate of 35 rupees. जैसे कि उनको पता है कि करीबन 35 रुपए की वो बॉटल आएगी, But I don't have change, I have only 500. लेकिन इनके पास चेंज नहीं है, सिर्फ 500 का नोट है। If I trust you, अगर ये इन पर भरोसा रखते हैं, I will remove the 500 and give to तो you. ये 500 का नोट निकालेंगे और And दे say, देंगे। go and buy for me a Coke. वो बोलेंगे कि जाओ ले देखो, Because I know that you are going to bring for me the change. क्योंकि उनको पता है, ये विश्वास है कि जो बचे हुए पैसे वो उनको लौटाएंगी। I am not going to doubt you. वो शक नहीं करेंगी। But if I doubt you, लेकिन अगर इन पे शक करते हैं, I will say, what of if you run away with my money? वो कहेंगे अच्छा अगर ऐसा हुआ कि मेरे पैसे लेके तुम भाग गई तो Let me go and look for change. चलो मैं जाके पैसे खुले ढूंढता हूँ। I don't trust him. मेरे पास I खुले भी don't है, trust her.
क्योंकि मुझे विश्वास भी नहीं है। That is always in our heart. वही हमारे दिल में हमेशा होता है। If you trust God, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, you should talk to Him like somebody you have a trust. तो आप परमेश्वर से ऐसे बात करें जैसे परमेश्वर को पूरा भरोसा है। You pray like somebody you know. तो हम ऐसे प्रार्थना करें कि जैसे कि हम उन्हें जानते हैं पूरी तरह से। Lord, have your way in my life today. कि परमेश्वर अपने रास्तों को मेरे जीवन में Not लेकर आए। Lord, if you have your way in my life. आप हमेशा अगर का इस्तेमाल ना करें। If you lead me and I come back. अगर आप मुझे बढ़ाएंगे तो ही मैं Lord, lead me. आप मुझे आगे बढ़ाएं और मुझे पहुंचाएं जहाँ आपको पहुंचाना है। Because you know Him. क्योंकि आप जानते हैं Because परमेश्वर you trust Him. क्योंकि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते So हैं। you shouldn't have double mind. क्यों आपको दो जगह पे दिमाग लगा के नहीं चलना है। You shouldn't suspect God. आपको परमेश्वर पे शक नहीं करना। God is not, it's not like an item which you buy that needs receipt. तो आप परमेश्वर उस चीज की तरह नहीं है जिसको आपने खरीद लिया और उसकी रिसिप्ट नहीं मिली। You don't ask God, give me the receipt of this prayer. आप परमेश्वर से ये नहीं कहते कि परमेश्वर मैंने प्रार्थना करी इसकी रिसिप्ट तो दे दो कि होगा कि नहीं होगा। I answered my prayer. लेकिन आप मेरी प्रार्थना का जवाब जरूर दो। God, I do not need any receipt. परमेश्वर मुझे किसी भी रिसिप्ट की जरूरत नहीं है। Because my receipt is in my faith. क्योंकि मेरी रिसिप्ट मेरा विश्वास है। God has given everyone the receipt. परमेश्वर ने हर किसी को वो रिसिप्ट दे दी है। The spiritual receipt of faith वो आत्मिक रिसिप्ट विश्वास की। is you to use your own or you don't use them. तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने विश्वास की रिसिप्ट का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं। The wise people use their receipt. जो समझदार व्यक्ति है उस रिसिप्ट का इस्तेमाल The करेगा। faith that they have. जो विश्वास उसके पास है। Why the foolish people are looking for the receipt? Why they have it in them? क्यों बेवकूफ लोग रिसिप्ट ही ढूंढते जा रहे हैं जो उनके पास पहले से ही परमेश्वर ने दी हुई है? There is power in God. क्योंकि विश्वास परमेश्वर में सामर्थ्य है। There is something that made me wanted to know that Satan, Satan, evil, is true. कि एक चीज है जो हमारे भाई को ये विश्वास दिलाती है कि शैतान सच्चा है। Satan is true. But I am going to say this so that you understand that the spirit is true, is real. तो हमारे भाई कह रहे हैं कि शैतान सच में है और वो बताना चाहते हैं जिससे आप भी समझे कि शैतान है। You see those that go and invite Satan, those that go and invite spirit. Maybe if you call Satan, it's a general name. Those that go and invite the spirit. There's so many spirits, maybe spirit of prosperity, spirit of this, where you are looking. People do not know how this spirit comes. बहुत सारे लोग हैं जो काला जादू करवाते हैं और जो जानते हैं कि हमारे अंदर हमारे जीवन में उन्नति की स्पिरिट आ जाए, उन्नति की आत्मा आ जाए, सफलता की आत्मा आ जाए और उसके लिए वो शैतान की आत्मा को बुलाते हैं। They invite this spirit, by looking for progress in their life. People may go to the river to do some incantations so that their business will grow, so that the things that they do will work. Indirectly, you are opening yourself for any spirit to come into your life, knowingly or unknowingly. Not for you. You are doing something for your prosperity of your children, or something like that. People go night time, they throw egg, they do some incantation, they use red cover and do something for prosperity in life. But indirectly, they are bringing on no spirit in their life. बहुत सारे लोग हैं जो नदियों के पास जाते हैं, इधर-उधर जाते हैं, कभी अंडा चढ़ा देते हैं, कभी कुछ पानी चढ़ाते हैं, कभी दूध चढ़ाते हैं। उन्हें लगता है कि इन चीजों से हमारे जीवन में उन्नति आ जाएगी, लेकिन उनको नहीं पता कि इसकी वजह से वो शैतान की आत्मा को अपने जीवन में बुला देते हैं। Amen. Why I tell you that? क्यों आपको ये बता रहे हैं Satan is real. कि शैतान असली है? I was fighting for somebody that is possessed with demon. क्योंकि ये किसी ऐसे इंसान से लड़ रहे थे जिसके अंदर शैतान था। And during that period, और उस समय के अंदर I was on fasting ये उपवास पर थे for more than 1 month. 1 महीने से ज्यादा समय के लिए। But after the fasting, पर उपवास के बाद I went to mall alone. तो ये अकेले गए। I went to mall alone. ये अकेले गए And something happened in the mall. और कुछ अचानक से हुआ मॉल में। There was a woman वहाँ पर एक औरत थी that was wearing something that is unusual in the mall. Wearing like mini skirt, nearly half naked in the mall. तो वो मॉल के अंदर उस औरत ने कुछ ऐसे बहुत छोटे कपड़े पहने हुए थे, छोटी स्कर्ट जैसे करीबन आधी नंगी वो। By mistakenly, so I have to look. तो गलती से इन भाई की नजर उस पर पड़ गई। It's in the mall. I looked at it क्योंकि वो मॉल में चल रहे थे, उस पर नजर पड़ गई। as others are looking. जैसे और भी देख रहे थे। And
I see it as nothing. इन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा And I went home. और घर चले गए And after I went home, और घर जाने के बाद the person that I was fighting, the evil spirit, told me. जो बुरे आत्मा से लड़ रहे It थे was उसको something बताया shock. कि कुछ ऐसी चीज जिनको अचंभित कर रही He said, "You see today." कि तुमने आज क्या देखा This happened in the mall. I was alone. कि ये मॉल में थे और ये अकेले थे And the day I came to meet the person to fight, because I was fasting. क्योंकि उपवास में थे और एक आत्मा से लड़ रहे थे The spirit told me that you see today in the mall. और उस आत्मा ने ये बताया जिन्होंने मॉल में देखा था And I hold my hand on the head. और इन्होंने अपना हाथ सिर पे रख लिया I said, the spirit is real. इसका मतलब आत्माएं सच्ची हैं I don't need any. I am standing here at the altar, and God knows that I will never lie. वो कह रहे हैं कि मैं वेदी में खड़ा हूँ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ उन्हें पता है कि परमेश्वर को पता है कि क्या बोल रहे हैं That is what, when I know that the spirit is real. ये आत्माएं सच्ची हैं What I did alone, only me was there in the mall. जो ये मॉल में अकेले इन्होंने किया वहाँ पर उस आत्मा को भी पता था इन्होंने क्या किया And after some days that I went back, and the person who told me that I said in the mall exactly place and what I did. और क्योंकि कुछ दिनों बाद उस आत्मा ने इनको बताया कि मॉल में जो तुमने अकेले पाप करा वो उनको पता है That's why I say God is great. इसका मतलब परमेश्वर बहुत बड़े हैं I wish that God is going to give us a goggle that we see something in the spirit. तो हमारे भाई कह रहे कि काश ऐसा होता कि परमेश्वर हमें ऐसे चश्मे दे दे जिससे कि हम आत्मा में होकर देख पाए चीजों को That's why you need to be in prayer. और इसीलिए हमें प्रार्थनाओं में बने रहना बहुत You जरूरी है need to be in prayer. आपको प्रार्थनाओं में रहना बहुत जरूरी You है need to pray. आपको प्रार्थना करने की जरूरत है The spirit is real. क्योंकि आत्माएं सच्ची हैं Every day of your life, आपके जीवन का हर एक दिन one spirit is after you. हर एक आत्मा आपके पीछे चल रही है But you can't see them. लेकिन आप उन आत्माओं को देख नहीं You सकते can't see them. आप उनको देख नहीं सकते You just see all the beautiful things around आपको you. बस सुंदर सुंदर चीजें आसपास दिखाई But देती हैं every evil spirit is haunting you every day of your life. लेकिन एक कोई आत्मा हमेशा आपके साथ चल रही है हर एक दिन That is why you see some people dying, dying around every. Some people who go and they couldn't return. It's the spirit that is following them. कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर जाते हैं और वो बाहर ही मर जाते हैं लेकिन वो वापस नहीं आ पाते कि वही आत्माओं के पीछे चल रही है But when you have God, लेकिन जब आपके पास परमेश्वर when होते हैं you pray every और morning, जब hर सुबह प्रार्थना करते हैं the spirit will say, "Oh, I will be looking for the day he will not pray or she will not pray." तो जो आत्मा आपके पीछे चल रही है वो ऐसे हाथ खड़े करके सोचेगा कि अरे ये किस दिन प्रार्थना नहीं करेगा मैं उसी दिन इस पर अटैक करूंगा Whenever you're moving out from your house, जब अपने घर से बाहर जाएं seal yourself with the blood of अपने आप Jesus. को यीशु मसीह के लहू से कवर करके Some people tend to forget. कई लोग भूल जाते हैं इसको Do not forget, इसको भूले ना even if it is a short prayer. चाहे छोटी सी प्रार्थना ही क्यों ना हो I seal my going out with the blood of Jesus. आप बोले कि मैं बाहर जा रहा हूँ और यीशु मसीह के लहू से अपने आप Never को you ढक लें। forget this. अगर आप इसे भूल भी जाएं The spirit is real. वो आत्मा सच्ची है That is why, as long as I can, कि जब तक मैं कर सकता हूँ I light candle every morning for God. तो हर रोज ये परमेश्वर के लिए Even if it's प्रार्थना for 2 करता हूँ। minutes, चाहे 2 मिनट की प्रार्थना ही I क्यों ना हो light that candle. तो ये उस मोमबत्ती को I जलाते say, हैं God, thank you. आप बोलते हैं परमेश्वर धन्यवाद And I turn it off. और बोलते हैं I know that the smoke of that candle has gone to God. That my work that day will be protected by क्योंकि God. इनको विश्वास है कि उस मोमबत्ती का जो धुआं परमेश्वर के पास पहुंचेगा और मुझे सुरक्षा जरूर मिलेगी But people choose to take this very, very low. लेकिन लोग इसको बहुत मजाक में और हल्के में ले लेते They हैं are very well. When they wake up in the morning, they say, make chai. Early morning chai on the bed, you know. They don't forget chai while lying on the bed. जब लोग सुबह बिस्तर पे होते हैं उठते ही बोलते हैं चाय दे दो लेकिन ये नहीं कि पहले प्रार्थना Many करें people have made it without chai, I can't open my eyes. कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि मैं बिना चाय पिए अपना मुंह भी नहीं खोलता Then they wake up, drink chai first so that I can open my eyes. कई लोग बोलते हैं कि लोग उन्हें उठाने आते हैं नहीं पहले चाय लेके आओ तभी आंखें खोलें And it has become a routine in their उनका life. रूटीन ऐसा बन गया है Some people wake up in the morning and they say, give me one bottle of beer कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं सुबह उठ के कि पहले हमें एक बोतल बियर दो so that the sleep will go away from our eyes. ताकि नींद निकल जाए आंखों में से So we use whiskey, so we use rum, to clear their stomach. Some people say, कई लोग विस्की और रम पीते हैं अपना पेट खाली करके I need to wash my stomach, give me one glass of rum. All these things are what people don't forget in their life every morning. ये वो चीजें हैं जो लोग अपने जीवन में भूलते नहीं हैं हर सुबह
some people wake up, they remember the appointment, come, they take bath, they wear their clothes, they move off. कई लोग हैं सुबह उठते अपने अपॉइंटमेंट याद रखते हैं, फटाफट नहाने जाते हैं, कपड़े बदलकर घर से बाहर निकलते हैं। And that spirit in your door will be waiting for you. और वो आत्मा खड़ी और आपका इंतजार कर They रही say है। he didn't pray today. अरे आज इसने प्रार्थना नहीं करी, We are going to follow him. चलो इसके पीछे चलें। Maybe they can dash you in an accident. हो because सकता है of किसी that. एक्सीडेंट में उसको मार दें। They can cripple you. You can go. You don't return with your leg. हो सकता है कि वो बाहर जाए, आपको लकवा लग जाए, कोई बीमारी लग जाए और आप वापस सही सलामत आ ही ना पाए। They can harm you वो आपको किससे परेशान कर सकते हैं, because you left yourself empty. क्योंकि आपने अपने खुद ही प्रार्थना ना होने की वजह से खाली छोड़ के बाहर चले गए। Learn to pray. इसलिए प्रार्थना करना सीखें। In the mighty name of यीशु मसीह के Jesus. सामर्थी नाम में। Let's go to Exodus. यशायाह की किताब Exodus chapter 17 from verse 1 to 4. Exodus, some people will say. Exodus यशायाह chapter की किताब 17. 79 पेज नंबर पुराना नियम 17वां अध्याय Exodus chapter 17 1 से from 4। verse 1 to 4. 79 पेज नंबर पुराना नियम 17वां अध्याय 1 से 4 वचन। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रपीदीम में और अपने डेरे खड़े किए और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। इसलिए वे मूसा से बात करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों बात करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा को दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। Amen. People complain. लोग शिकायतें करते हैं, People test God लोग परमेश्वर की परीक्षाएं लेते हैं, because when they are in need. क्योंकि जब उन्हें जरूरत होती है। That is the reason. यही कारण है। Or else, what is the reason for you to test God? नहीं तो परमेश्वर की परीक्षा लेने का कारण है क्या? आपकी जरूरत। What is the, if not when you are in pain, if not when you need help, what is the reason for you to test God? तो जब आप परेशानी में हैं, दुख में हैं, तभी तो आपको लगता है कि परमेश्वर की परीक्षा लेनी है, नहीं तो क्या परीक्षा लेने का कारण If है? God provides everything for you, your life is so beautiful, you don't lack anything, will you remember testing God? Will you remember asking God anything? अगर परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया कर दे, आशीषों से आपके जीवन को भर दे, तो क्या परमेश्वर की परीक्षा लेना आपको याद रहेगा? Only when they are pain, the Israelites, you saw it, Moses was leading them, they are thirsty of water. तो जब ये लोग इस्राएलियों की हम बात करते हैं, प्यासे थे, इनको प्यास लग रही थी, तभी इन्होंने परमेश्वर की परीक्षा लेने की सोची। They stood against Moses. और ये मूसा के खिलाफ सारे खड़े हो गए। The people say, why do you brought us here to kill us? और लोगों ने कहा कि क्यों हमें यहाँ पे के प्यासा रखने के लिए लेकर आए हो? You know, they gave Moses a lot of tension उन्होंने because मूसा of को water. बहुत सारी परेशानियां दी। They test for water. उन्होंने परीक्षा ली मूसा की परमेश्वर की प्यासे रहने की वजह They से। don't know the plan God have for them. उन्हें नहीं पता कि परमेश्वर की क्या योजना है उनके लिए, Because that particular time they test for water. क्योंकि उन्हें परीक्षा वो प्यास लग रही है और पानी चाहिए And they are testing और God. परमेश्वर की परीक्षा वो लोग ले रहे हैं। They say, God, are you for us or are you not with us? उन्हें पूछे कि परमेश्वर हमारे साथ है कि हमारे खिलाफ है? And God, you know, people tend to test God only in pain. लोग परमेश्वर की परीक्षा सिर्फ दर्द में ही लेते हैं। That's why you see people when something happened to them or their family, they will say, God, why me? God, why me? God, why me? Or you say, oh God. You know, all those testing, all those cry of pain, all those comes as a result of the pain which you are passing through. जब भी आपके जीवन में परिवार में कोई परेशानी होती है, तब आप कहते हैं कि क्यों परमेश्वर मेरे साथ ही ऐसा हुआ, क्यों परमेश्वर ऐसा हुआ, और तभी आप परमेश्वर की परीक्षा लेते हैं। But instead of us to be testing God, लेकिन अगर हम परमेश्वर की परीक्षा instead लें, of us to be, trying to ask God if He is for us or not with अगर हम us, परमेश्वर से ये पूछे कि परमेश्वर आप मेरे लिए खड़े हैं कि नहीं खड़े, why can't we say, glory be to God? हम ये क्यों नहीं कह सकते कि परमेश्वर को सारी महिमा? Why can't we say, God, I know You will provide? आप ये क्यों नहीं कह सकते कि परमेश्वर मुझे पता है आप जरूर देंगे? Why can't you say, God, I know that this condition I am is not permanent? आप ये क्यों नहीं कहते कि परमेश्वर जिस परिस्थिति में अभी हूँ, मुझे पता है ये स्थायी नहीं है, बदलेगी? Why can't you say, God, be good or bad, may Your name be glorified? आप ये क्यों नहीं कहते कि परमेश्वर अच्छे और बुरे समय में, दोनों समय में आपके नाम को महिमा We मिले? can still speak that way. हम ऐसे बोल सकते हैं। You know,
you get what you want अगर आपको वो मिल जाए जो आपको चाहिए through the tone of your language. आपके बोलने के तरीके से, If I command you अगर ये आपको बोले to give me what belongs to you, कि जो आपका है कि इनको दे दें, give me that money now. मुझे दे दो अभी ये सब, Are you going to give me? क्या आप दे देंगे इन्हें? The language I use अगर matters. इन्होंने जिस तरीके से आपसे बोला, गुस्से से आपसे मांगा, तो Or क्या if I इन्हें tell दे you, देंगे? if you don't give me, you will see what I will do to you. और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, फिर देखना मैं क्या You करता हूँ। better bring that money or else. अगर वो पैसा मेरे पास लेके आओ, नहीं तो देखना क्या करता हूँ मैं। The language matters. कि आपके बोलने का तरीका बहुत फर्क पड़ता है कि But कैसा है। when you are in need of something, लेकिन जब आपको किसी की जरूरत है, you just need to say, please तो उस समय अपने घुटनों पर आए help me. और आप बोले परमेश्वर प्लीज मेरी मदद करें। Why can't that person help you? तो क्यों वो इंसान आपकी मदद Why नहीं can't you करेगा? get what you want? आप वो क्यों नहीं देगा जो आपको चाहिए? Language matters. बात करने का तरीका मैटर करता है, The way it works to God. क्योंकि परमेश्वर के साथ भी ऐसे ही आपकी बात करने का तरीका मैटर करता है। That's why some people God answer their prayers, some people God don't answer their prayers. इसलिए कुछ लोगों की तो प्रार्थना परमेश्वर जवाब देता है, कुछ लोगों को नहीं It's देता है, because of language. क्योंकि आपकी बात करने का तरीका कैसा है। Let's go to Exodus chapter 17 verse 7. निर्गमन की किताब 17 अध्याय 7वां वचन, इसी पेज नंबर पे 17 verse 7. 17 का 7। और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इजरायलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की थी कि क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। God did not forget. परमेश्वर भूलते नहीं हैं। For that pressure, for that unbelief, for that thing that they mount pressure on Moses, because they said, Moses, you brought us here to kill us, because they couldn't bear the thirst, the urge of water for some time, which God is going to give them, the beautiful water God is planning to give them, because they rebelled against God, because they couldn't withstand in the time of pain. God did not forget. इजरायलियों के अविश्वास के कारण उन्होंने मूसा को इतना ज्यादा प्रेशराइज करा कि नहीं तो हमें पानी दो, और उन्होंने उस समय जब परमेश्वर ने उनकी परीक्षा ली थी, उस पानी उस प्यास में रहने के लिए उन लोगों ने उस परीक्षा में हार नहीं किया, लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर को परीक्षा लेना शुरू कर दिया। God used pain. परमेश्वर दर्द का इस्तेमाल करते हैं। That place, they say that place, God used pain and gave the name Messiah and Mariba. और परमेश्वर ने जगह का नाम, मूसा ने जगह का नाम मस्सा और मरीबा दी। परमेश्वर की परीक्षा उन लोगों ने वहां पर की। Why? क्यों? God gave the name where they rebelled against God, where they couldn't hold their faith, where they doubted God. God did not forget. God gave the name Messiah and Mariba. आप देखिए परमेश्वर ने उस जगह का नाम मस्सा और मरीबा क्यों दिया? क्योंकि वो जगह थी जहाँ पर लोगों ने परमेश्वर में विश्वास नहीं करा, और जिस भी समय हम परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, परमेश्वर से भूलते नहीं। Somebody tell me why God gave that name. क्यों परमेश्वर ने वो मस्सा और मरीबा नाम दिया? कोई बता Somebody सकता tell है? me why God did not forget what they did. क्यों परमेश्वर ने भूला नहीं, उस जगह का नाम क्यों दे दिया? Can anybody कोई tell me बता सकता है? why? क्यों परमेश्वर उस जगह को भूल नहीं सकते जहाँ पर लोगों ने विश्वास नहीं किया? I want people that listen to me, they cry. Because when you are listening to me, you have to follow up. अगर आप भाई की बात सुन रहे हैं तो आपको जवाब भी Why देना चाहिए। God didn't forget? Why they made God to say, oh, is this my people? Is this the people that I have been fighting for? Is it the people that have been protecting against the Egyptians? It is the people that have been with them day and night, evening, morning, all the time. I am with them. Just because they thirst for water. तो He लोग did all this to me. Why God didn't forget? क्यों The परमेश्वर particular place he write it Messiah and Mariba. Why? क्यों परमेश्वर ने जगह का नाम मस्सा मरीबा दिया कि जहाँ पर परमेश्वर ने लोगों को आज तक संभाले हुए था, जब लोगों ने परमेश्वर में विश्वास नहीं करा, लोगों ने उस प्यास को संभाल नहीं पाए, तो परमेश्वर परीक्षा करती। Answer something. Why? क्यों? You must say something. If you are listening to me, you must अगर say आप something. सुन रहे हैं तो जवाब दें क्यों? Why? क्यों परमेश्वर ने जगह का नाम दिया? What did they do to God that God couldn't forget? क्यों उन्होंने ऐसा परमेश्वर पे अविश्वास दिखाया, परमेश्वर भूल नहीं पाए? That particular circle, as they doubted what God had did. उन्होंने परमेश्वर पे अविश्वास दिखाया। God gave the place a name so that you and I will remember it generation upon generation. परमेश्वर उसका नाम मस्सा मरीबा दिया ताकि आप उसको पीढ़ी दर पीढ़ी
याद रखें। That's the reason why. और यही उसका कारण है क्यों। I want to dash intelligence. I love that. I want to encourage people. If somebody I can dash 1,000 rupees. If you can, tell अगर आप me सही why. जवाब देंगे तो हमारे भाई आपको 1000 रुपए देंगे अभी। I want people who follow up. आप ध्यान से सुने क्यों। You change your life. Every day of your life you learn something. And when you learn something in your life, it changes you. Great people are not people who read lots of books or who go to the best school. The great people are the people that grabs every single opportunity that comes in their तो life. जो लोग भी किताबें पढ़ते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हर एक मौके का फायदा उठाते हैं। तो आप इस मौके का फायदा उठाएं। And no one tell me the reason. कोई नहीं बता सकता क्या? I am not happy. तो हमारे भाई खुश नहीं हैं। I'm not happy. I'm not happy. Yes, speak against God. Yes. That is it. But not the correct answer. But the correct answer is, I will tell you, it's there in the Bible. It's there. It's there. But read the last verse. That is why. God did miracle through Moses. Yes, read the last verse, verse 7. Verse 7. Read the तो हम last 7वां वचन पढ़े और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा मरीबा रखा क्योंकि इजरायलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की कि क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। The last sentence, the last one. कि Is क्या the Lord, परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं। is the Lord among us or not? क्या परमेश्वर हमारे बीच में है या नहीं। And God. इससे परमेश्वर को दुख हुआ। Somebody that have been helping you. कोई अगर आपकी मदद कर Somebody रहा है, that have been with you in pain. वो आपके साथ जो दर्द में रहा, Then you, because of something, little thing, it's time to ask the person, are you with me or not? किसी ने आपके जीवन के लिए इतना कुछ करा, आपके हर दर्द में साथ रहा और छोटी सी परेशानी पे आते ही आप उससे पूछे कि क्या तू है कि नहीं। It's too painful. कितना दर्द भरा है। It's too painful. We are all like that every day of our life. हम रोज ही सब ऐसे हैं अपने जीवन में। Somebody can be doing good for you कोई आपकी रक्षा कर रहा है 100 times. 1000 बार, 100 बार, One mistake, लेकिन एक गलती, you forgot those good आप सब things. अच्छी चीजें भूल जाते हैं And you judge the person just with that tiny thing he did. और हम उस इंसान का न्याय कर देते हैं वो छोटी सी चीज के ऊपर। That is our life. यही हमारा जीवन है That is what God can't forget. और यही चीजें परमेश्वर I भूल नहीं have सकता। led these people whole of their कि मैं life. इन लोगों को पूरे रास्ते पूरे जीवन भर लेकर आया And हूँ they asked him, I God, are you with us or against और us? आज ये लोग मुझसे पूछ रहे कि क्या आप मेरे साथ हो या नहीं। God was pain in the spirit. परमेश्वर को आत्मा में दर्द हुआ, He couldn't forget that वो भूल नहीं place. पाए कि क्या है वो जगह, He couldn't forget that place. उस जगह को भूल नहीं पाए। God groaned in the spirit. परमेश्वर को आत्मा में बहुत दुख हुआ, The spirit of God was troubled. परमेश्वर की आत्मा को दुख हुआ He was disappointed. और उनको निराशा हुई। God was disappointed. परमेश्वर निराश हुए। There is something that we could do कुछ ऐसी चीज जो हम अपने जीवन में नहीं पा पाते that would make God to weep. और वही चीज परमेश्वर को दुख देती है। And that is when we lost our faith. और जब हम अपना विश्वास खो देते हैं, When we lost our faith, जब अपना भरोसा खो देते हैं, God is not happy with us. परमेश्वर उसे खुश नहीं We होते। should listen and we should know तो हमें पता होना चाहिए that you shouldn't be testing God. कि on परमेश्वर this. की परीक्षा आपको नहीं करनी है। Instead of testing God. परमेश्वर की परीक्षा करने से अच्छा Because है, when you unnecessarily test God, क्योंकि जब आप परमेश्वर की परीक्षा लेते हैं बेमतलब God में, look at you and say, is this my child? तब परमेश्वर आपको देख के सोचते हैं Is this my son? क्या यही मेरा बेटा या I मेरी have बेटी, been with for a long time. इसके साथ तो मैं हमेशा ही रहा So हूँ। you don't even know what I can do. उसे नहीं पता कि मैं क्या कर So सकता हूँ, you don't even know I love him so much. उसे नहीं पता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। Why should he ask me whether I love him or not? और आज वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं उससे प्यार करता So हूँ, he don't know, she don't know that I love him क्योंकि क्या उसे पता नहीं कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ with my heart. अपने पूरे दिल से। But God loves you. God becomes so happy लेकिन परमेश्वर कब बहुत खुश होते हैं when you exhibit your faith. जब अपने विश्वास को आप बढ़ा लेते हैं। Oh, he is with me. अरे परमेश्वर तो मेरे साथ में है, Even though I am in problem, चाहे मैं परेशानी में क्यों ना हूँ, even though I lack, चाहे मेरे जीवन में कमी even क्यों ना हो, though things are not moving चाहे beautifully मेरे in my जीवन में life, सुंदर चीजें ना भी चल रही हो, even though I am sick, चाहे मैं बीमार भी क्यों ना I हो, know God have never left me for परमेश्वर loss. तो आज तक मुझे गिरा नहीं छोड़ा, तो How आप कैसे छोड़ happy देंगे? God will be. मुझे पता है परमेश्वर मेरे
साथ में The same way, He will also remember the day you believed Him. और In परमेश्वर faith, ने He वो भी will write it down. इसलिए परमेश्वर वो दिन भी याद रखेगा जब आपने परमेश्वर ने मुश्किलों में भी भरोसा रखा है। That is who God वही is. परमेश्वर है। I want to end this. Let's go to Hebrews. इब्रानी की किताब Hebrews chapter 1. Hebrews chapter 11. We are going to end it with this verse. इब्रानी की किताब हिंदी बाइबल नया नियम 312 पेज। Hebrews chapter 11. We are going to take from 1 to 12. 1 से लेकर 12 तक हम पढ़ेंगे। 312 पेज नंबर हिंदी बाइबल। Hebrews chapter 11. You read from 1. Read हम first पढ़ेंगे 1. इब्रानी की किताब 11वां अध्याय पहला वचन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। तीसरा, Read to 5th verse. विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। 4, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। 5, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया, मृत्यु को ना देखे और उसको पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। Amen. Faith is the substance विश्वास ही है सब कुछ, of things hoped for. The evidence, I told you this, the receipt कि जब हम बात करते हैं रिसिप्ट की which God have given to जो you परमेश्वर ने हम सबको दी है, is the faith in your heart. ये वही है जो विश्वास है आपके दिल में। Either you use it or you don't use it. या तो आप उसका इस्तेमाल करें या उसका इस्तेमाल ना करें। Either you make use of the certificate of faith which God has given to you or तो ये not. आपके ऊपर है कि आप उस विश्वास के प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते। The Bible calls it the substance. बाइबल बात बताती है Substance कि कोई एक ऐसी चीज of things hoped for, the evidence of things not seen. कि वो चीजों की बात करते हैं जो चीजें दिख नहीं रही है लेकिन उसमें आप विश्वास It's रखते हैं, faith. वही है विश्वास। So if you have it, अगर आपके पास वो विश्वास है, what's the need of testing God? क्या मतलब है परमेश्वर की परीक्षा लेने का? God said it's the evidence of things not seen. परमेश्वर क्या है? विश्वास ही है तो जो जिसमें आप कहते हैं कि जो चीजें नहीं दिख रही है वो जरूर होगी। It's in your heart. आप देखिए अपने दिल If को, you have it, why do you require any receipt? अगर आपके पास दिल है तो आपको क्या रिसिप्ट की Why जरूरत do है? you test God? Why do you say God if you do this or you don't do that? तो आप क्यों परमेश्वर की परीक्षा लेते हैं कि परमेश्वर अगर आप ऐसा You करोगे ऐसा know He नहीं will करोगे? do it if you believe. आपको पता है कि अगर आप विश्वास करेंगे तो वो First, जरूर he said, करेंगे। by faith we understand that the walls were framed by the word of God, so that the things which are not seen were not made of things which are visible. तीसरे वचन में लिखा है विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। Things that you can see जो चीजें आप देख सकते हैं is different from things that which you cannot see. वो चीजें अलग है जिनको आप नहीं देख सकते, And the instruments were different. और जो इस्तेमाल करने की चीजें हैं वो भी अलग है। So you cannot use the instrument of the things which you can see to produce the instrument of the things which you cannot see. तो जो चीजें आप देख सकते हैं उनको बनाने में जिन वस्तुओं का इस्तेमाल होता है उन चीजों को इस्तेमाल आप नहीं कर सकते उन चीजों को बनाने में जो नहीं देख सकते, It cannot fit together. वो साथ में नहीं आ सकती। Is it possible for you to how will I say it? How will I say it? Is it possible for you to bring the tail of let's say a cat, and also you bring the head of a goat and you fix them? So what name will you call it? कि ये मुमकिन है कि आप किसी बिल्ली की पूंछ लेकर आए और एक सर लेकर आए बकरी का और साथ में जोड़ दे तो कोई नाम दे सकते हैं उसको? Verse 4 give you example. Verse 4 says, by faith Abel offered to God more excellent sacrifice than Cain. चौथे वचन में लिखा है विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। When he was offering the sacrifice, he did not doubt. क्योंकि जब उसने बलिदान चढ़ाया तो उसने डाउट नहीं करा। He did not say, God,
if you take this sacrifice, if you accept this sacrifice, then this thing will happen or this thing will not happen. उसने ये नहीं बोला कि परमेश्वर अगर मैं ये बलिदान चढ़ा रहा हूँ तो मेरे जीवन में ये होगा या ये नहीं होगा। His brother Cain and Abel. उसका भाई भी आया, केन और एबेल दोनों आए। His brother Cain was testing God. जब केन है वो परमेश्वर की परीक्षा ले रहा था, He offered God a grass उसने परमेश्वर को घास as दी a sacrifice. एक बलिदान के रूप में। But Abel used all he has. लेकिन एबेल ने सबसे उत्तम परमेश्वर को चढ़ाया। He said, "It doesn't matter if I lose them, उसने बोला कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सबसे but उत्तम I चीजें know that my God exists. क्योंकि उसने कहा कि मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर To है, him belongs all that I have." सब कुछ जो मेरा है वो परमेश्वर का ही है। And he gave the fattest और sacrifice. उसने पूरी तरह से सबसे अच्छा उत्तम बलिदान And we परमेश्वर को have चढ़ाया। never seen anything. और उसके बाद कुछ नहीं हमने ऐसा There was देखा। no promise from God. परमेश्वर ने कोई वचन There हमको was नहीं दिया। no exchange. उसके देने के बाद परमेश्वर ने God कुछ नहीं दिया released उसको। it. And God accepted it. लेकिन And blessed परमेश्वर it. ने एबेल ने जो भेंट चढ़ाई थी उसे स्वीकार कर लिया। Same also, by faith, Enoch was taken away so that he did not see death. और हमने क्या देखा अगले वचन के अंदर 5वें में कि विश्वास से ही हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे। He pleases God. उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। He pleases God who was taken away. वो परमेश्वर के प्रसन्न करने की वजह से He चले never गए। saw death. उसने मृत्यु देखी ही नहीं। That is the power of faith. वही विश्वास का That सामर्थ्य you है। believe if I please God, क्योंकि उसने ये विश्वास किया अगर परमेश्वर को प्रसन्न कर लूंगा तो मेरा जीवन परमेश्वर He का ही can है। do all things for me. तो वो मेरे लिए सब कुछ करेगा। Let's rapidly go from 6. हम 6वां वचन पढ़े और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। Amen. आमीन। He said, without faith it is impossible. बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। It is impossible to please God. परमेश्वर को आप प्रसन्न नहीं कर सकते बिना विश्वास के, Because you will always doubt. क्योंकि आप हमेशा शक में ही लगे रहेंगे। You will always test आप Him. हमेशा परमेश्वर की परीक्षा ही लेते रहेंगे। It is lack of faith that brings testing of ये God. विश्वास की कमी ही है जो परमेश्वर की परीक्षा हम लोग लेते हैं। Because you cannot please somebody which you don't have faith कि in. आप किसी को ऐसे प्रसन्न नहीं कर सकते जिसके अंदर आपको विश्वास ही ना हो। You can only please me when you trust me. आप हमारे भाई को प्रसन्न तभी कर सकते हैं जब आप इन पे विश्वास If रखते हैं। you trust me, you can hand everything over अगर आप इन पे to me. विश्वास रखते हैं तभी हम हर एक चीज इनके हाथों में पकड़ा देंगे। Because you know I'm not going to disappoint, I'm not going to harm क्योंकि anyone. आपको पता है कि ये कभी भी आपको निराश नहीं करेगी, कोई चीज खराब नहीं करेगी। Without faith, it is impossible to please God. बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना For अनहोना है। he who comes to God must believe that He is and that He is the rewarder of those who diligently seek Him. क्योंकि परमेश्वर उन्हीं का देखता है। यहाँ पे हम लिखा है कि परमेश्वर उन्हीं को प्रतिफल देता है जो उनको खोजने वाले होते हैं। Go to 7. I want to close 7वां right वचन now. लिखा है, विश्वास से ही नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसके संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। I'm saying, Noah come. God will not move. I'm going to destroy the world. परमेश्वर ने नूह से कहा कि मैं दुनिया को नष्ट करने वाला हूँ। You know, some people today, God have warned them directly or indirectly. बहुत सारे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने आज चेतावनी दे दी है, सीधे रूप में या असीधे रूप में। God have visited them in their dreams, परमेश्वर ने उनको सपनों में बात करी, telling them things that is about to come. उन्होंने बताया कि कुछ चीजें जो आने वाली हैं, But they put it by the side. लेकिन उन्होंने फिर भी उसको साइड में रख दिया So leave that sometimes. और कहते चलो छोड़ो, क्या ध्यान लगाना, This is dream. I don't even know. ये तो सपना है, कुछ नहीं होने All वाला। of a sudden, they will say, I forgot. और बोलेंगे ठीक है परमेश्वर देख लेंगे, Give me food to eat. मुझे खाना तो मिल ही You रहा। know, they do not, but Noah was there. He believed by faith. You know what God said, I will do it. I will build an ark and I will serve the people of God. हमने देखा कि नूह को परमेश्वर ने कहा कि मैं दुनिया को नष्ट करने वाला हूँ और एक जहाज बना और मैं तुम लोगों को बचाऊंगा, उसने विश्वास किया। Some people will say, God, prove me why you are going to destroy the world. बहुत सारे लोग कहेंगे अच्छा हमें पक्का विश्वास दिखाओ कि भाई कैसे परमेश्वर नष्ट करने वाले हैं। If you don't prove to me, then how am I going to build the ark? अगर हम क्यों जहाज बनाए जब परमेश्वर ने कुछ दिखाया तो है नहीं, लेकिन सिर्फ विश्वास। Noah said, yes, नूह ने कहा हाँ मैं बनाऊंगा जहाज, because I know He is क्योंकि God. मुझे पता है कि परमेश्वर है। Let's go to verse 8. हम देखते हैं 8वें I वचन will में। conclude just 3 minutes. 8वां वचन, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास से में लेने वाला था और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। Abraham आमीन। is famous. Take your son. आप देखिए अब्राहम कितना फेमस है, सब उसे जानते हैं। Go and sacrifice
your only son. उसको परमेश्वर ने क्या कहा कि जाओ अपने इकलौते बेटे की बलि चढ़ा दो। Who here can do that? कौन यहाँ पर ऐसा कर सकता है? कोई कर सकता Even है? if you have 7 sons, अगर आपके पास 7 बेटे होंगे तो भी, and God says sacrifice one. और परमेश्वर कहेगा कि 7 में से किसी एक की बलि चढ़ा दो। If you don't know what is the sacrifice, cut his neck and use the blood and pray for him. अगर आपको बलिदान नहीं पता तो आप देखिए किसी का गला काटे तो वही बलिदान होता If है। you can do that here, raise your hand. क्या आप कर सकते हैं ऐसा? Let me see. कितने लोग ऐसा कर सकते हैं, किसी का गला काट सकते I'm हैं? not talking about those who have only one. Abraham have only one son, one, not 2, not 3. But if you even have 3, 4, 5, 7, अब्राहम का तो एक ही बेटा जिसे परमेश्वर ने बलिदान चढ़ाने के लिए कहा, can you लेकिन अगर आपके 7 भी sacrifice हैं, one? Can you sacrifice one? क्या आप 5 या 7 में से एक को भी बलिदान चढ़ा सकते हैं? It's impossible. नहीं कर सकता कोई, It's impossible. नहीं कर सकता। But he did it. लेकिन अब्राहम ने फिर भी विश्वास से वो छुरा उठाया That is God this house. कि परमेश्वर परीक्षा ले रहा He है, is the only person that have the ability to test you and I. कि परमेश्वर में ही सामर्थ्य है, अधिकार है हमारी परीक्षा लेने का। But you and I have no right to test him. लेकिन हमारे पास कोई अधिकार नहीं है परमेश्वर की परीक्षा लेने का। Take it home and say you have from me. आप घर जाए और ये चीज बताएं कि आप When Abraham raised hand to sacrifice his जब son, अब्राहम ने हाथ उठाया इसहाक को मारने के लिए, he said, "Stop! I know today you have faith in me." और परमेश्वर की आवाज आई कि मुझे पता है, रुक जाओ कि तुम्हें विश्वास है। If Abraham protected the son, अगर अब्राहम ने परमेश्वर की and आज्ञा speaking पाकर to भी wisdom अब्राहम God, God is my only son. अपने बच्चे को बचाया होता, परमेश्वर ने कहा होता, परमेश्वर How का can I इकलौता बेटा sacrifice है, him? मैं इसकी बलिदान कैसे चढ़ा सकता हूँ? Now I've become old. I will not born again. अब तो मैं बूढ़ा भी हो चुका हूँ, मेरा बेटा भी Look नहीं at होगा। my age. Look at my अरे age. मेरी उम्र तो देखो, मैं अपने बच्चे को कैसे मार दूँ? But he said, God, you want this son? तो लेकिन उसने बोला परमेश्वर पे बच्चा चाहिए, You have it. ले लो। You give it to me and you want it back, so you take it. आपने ही दिया है और आपने ही ले लिया तो ले लो। When you protect something which is meant for God, कोई भी चीज की अगर आप सुरक्षा करते हैं जो परमेश्वर का है, when God wants to take it, you can't protect them. तो अगर परमेश्वर से ले जाना चाहते हैं तो आप उसे बचा नहीं सकते। There are people who have 8 sons, कितने लोग हैं जिनके पास मान लो 8 बच्चे हैं and before they grew old, in their presence, they lost those 8 और sons. बूढ़ा होने तक उनके 8 के 8 बच्चे मर गए। It's not in your hand to protect ये them. आपके हाथ में नहीं है कि आप लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं। When God leads them, He जब does. परमेश्वर को जरूरत है तो वो ले लेगा। But the prayer that we should pray, that let our faith bring blessings upon us. Amen. लेकिन जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आते हैं। Finish. Number 9, please. Number 9. 9वां वचन पढ़ेंगे। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। Read till 12. 10 क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसकी रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। 11 विश्वास से सारा ने अपने बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने का सामर्थ्य पाई क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाला को सच्चा जाना था। Amen. Sarah is the last, believing that there is nothing God cannot do. कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर नहीं कर सकते। Can you have child that a woman can give birth at the age of 90 years? क्या आप सोच सकते हैं कि कोई औरत 90 साल की उम्र में गर्भवती होगी? It's rare in this present world. इस दुनिया में तो ऐसा नामुमकिन बराबर है। But Sarah still believed लेकिन सारा ने फिर भी विश्वास किया that God will do it. कि परमेश्वर जरूर करेगा। It's not God can do it, God will do it. ये नहीं कि परमेश्वर कर सकता है, लेकिन परमेश्वर करेगा। And God did it. और परमेश्वर ने किया। And that is the faith. और यही विश्वास है। So my brothers and तो मेरे sisters, भाई और बहनों, ladies and gentlemen, मेरे भाई और बहनों, if you don't know anything today, अगर आज आप कुछ नहीं जानते हैं, I want you to build your faith on God. तो अपना विश्वास बनाए परमेश्वर में। Do not let circumstances, तो जो परिस्थितियां आपके आसपास हैं, do not let the troubles that you are passing through in life, जो परेशानियां, मुसीबतें आपके आसपास हैं, do not let the difficult moments in your life, जो मुश्किल समय आपके जीवन में आया है, lead you of losing your faith. ऐसा ना हो कि उसकी वजह से आपका विश्वास निकल Lead जाए। you to, planting the spirit of unbelief in you. ऐसा ना हो कि वो आपके जीवन में अविश्वास को ले आए, That situation should be the power क्योंकि उस सामर्थ्य, वो परिस्थिति that नहीं सामर्थ्य, rises your faith. क्योंकि वो परिस्थिति ही आपके विश्वास को That बढ़ाएगी। instead of you of testing God, लेकिन आप परमेश्वर की परीक्षा ले उससे अच्छा you affirm the reality of God in your life. तो अपने जीवन में परमेश्वर की
उपस्थिति को महसूस करें और विश्वास करें। As you do this, अगर आप ऐसा करते हैं, may His mercy and power always be with you, both now and तो forevermore. परमेश्वर की दया और अनुग्रह In हमेशा आप Jesus करें। Christ's mighty यीशु के name I सामर्थ्य pray. भरे नाम। Amen. आमीन।